Hello everyone, I am Deepika and today we are going to study his first flight which has been written by Liam O'Flaherty. This is part 1. The chapter consists of part 2 as well, but then we're going to cover part 1 here. Part 2 we're going to do in the other video. Before I start with the lesson, I want to tell you what exactly is the lesson about. His first flight. It's telling you exactly, it's about first flight, पहली उड़ान के बारे में. अब किसकी पहली उड़ान? ये एक स्टोरी है सीगल के बारे में, जो एक बर्ड होती है जो कि उड़ना सीख रही है और किस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान लेती है. पूरी स्टोरी उस पे बेस्ड है. एंड हाउ वी व्हेनेवर वी ट्राई समथिंग न्यू, हम भी नर्वस होते हैं, हमें लगता है शायद हम नहीं कर पाएंगे, बट इवेंचुअली इफ वी ट्राई we can do it, we will be able to do it if we try, है ना. So similar thing happens here with the seagull. It thinks in the beginning that it can't do it, but then later on it does it. So let's get started with the chapter. I'm going to do the chapter line by line. मैं आपको explanation दूंगी पूरे chapter का हिंदी में. The young seagull was alone on his ledge. ये आप पिक्चर देख रहे हैं, एक सीगल यहाँ पे बैठा हुआ है और ये ledge जो ये कॉर्नर साइड्स हैं इसको ledge बोल रहे हैं और यहाँ पे कुछ उड़ रहे हैं. सो यहाँ पे एक मदर है, एक फादर है, दो ब्रदर्स हैं इसके और एक सिस्टर है. उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे चैप्टर में. बताया गया है कि किस तरीके से बस हमारा सीगल नहीं उड़ पा रहा है लेकिन उसके ब्रदर्स और सिस्टर ने वो जो टेक्निक है वो अचीव कर लिया अब तक. His two brothers and sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. So उसके जो दो brothers थे और sister थे वो पहले सीख चुके थे एक दिन पहले कि कैसे उड़ना है, कैसे हवा में रहना है, फ्लाई करना सीखना है, लेकिन इसको बहुत डर लग रहा था तो वो उड़ ही नहीं पा रहा था, वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था अभी तक. Somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो जब भी वो यहाँ पे इस ledge के एकदम कॉर्नर पे साइड पे आ रहा था, ब्रिंक पे आ रहा था, वो एकदम डर जा रहा था और वापस भाग जा रहा था क्योंकि उसको इतना डर लग रहा था उड़ने से. उसे लग रहा था कि वो उड़ ही नहीं पाएगा. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. तो जब वो सी को देख रहा था उसे लग रहा था ये तो इतना स्ट्रेच हुआ है, माइल्स माइल्स तक बस वाटर ही वाटर है. He thought it's going to be really difficult for him to learn how to fly, and if at all he tries to fly he might just fall into the sea. He won't be able to achieve his goal. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to his little hole under the ledge where he slept at night. तो उसे इतना डर लगा, उसे लगा कि उसके जो विंग्स है वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा. सो उसने क्या किया, जिस जहां लेज पे उसका एक होल बन रखा था जहां वो यूजुअली सोता था रात में, वो वहां गया और वहां जाके बस छुप गया, बैठ गया. Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. So now what is happening? उसके जो उसके भाई थे और उसकी बहन थी हमारे सीगल के, ही दे कुड फ्लाई. दो उनके जो फेदर्स थे वो छोटे थे हमारे सीगल से, लेकिन सीगल को इतना डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि वो कभी फ्लैप ही नहीं कर पाएगा अपने विंग्स को, कभी मतलब उनसे उड़ ही नहीं पाएगा. तो वो हमेशा करेज जो था वो मस्टर अप करेज करना, मतलब वो अपना जो हौसला था वो एकदम खो देता था, कभी भी अपना इकट्ठा नहीं कर पाता था करेज कि हाँ भाई वो कर सकेगा, वो प्लंज ले सकेगा, वो उड़ सकेगा. एंड दिस मेड हिम which appeared to him so desperate. उसे लगा कि ये तो थोड़ा difficult होने वाला है, he's just not going to be able to do it ever. His father and mother had come around calling him shrilly. Shrilly मतलब आप जब भी जोर से बात करते हैं. Upbraiding him मतलब डांटना. Threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. तो उसके पेरेंट्स आके उसके मदर एंड फादर बार बार उसको डांट रहे थे कि अगर तुम नहीं गए यहाँ से, नहीं उड़ना सीखा तुमने, तुम नहीं उड़े यहाँ से, तो हम तुम्हें बिल्कुल खाना नहीं देंगे. बट उसको अपनी लाइफ के लिए इतना डर लग रहा था कि उसने हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि वो उड़ सके. होता है ना, कभी आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं करने के लिए और आप सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो अगर आप नहीं सीख पाते हैं, मतलब आप ट्राई नहीं करते हैं इतना ज्यादा, तो आपको थोड़ी सी डांट पड़ती है. सिमिलर थिंग इज हैपनिंग. उसके पेरेंट्स भी उसको डांट रहे हैं कि अगर तुमने नहीं सीखा और तुमने हिम्मत नहीं करी उड़ने की तो तुम्हें खाना बिल्कुल नहीं दिया जाएगा. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. पहले 24 आवर्स पहले, मतलब एक दिन जा चुका था ये सब कुछ होते होते, और उस 24 आवर के बाद अब उसके पास कोई भी नहीं आया था क्योंकि सब इतना थक चुके थे उसको मनाते मनाते और डांटते डांटते कि भाई उड़ना सीखो, लेकिन कोई अब उसको भाव ही नहीं दे रहा था, कोई उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो अब उसके पेरेंट्स ने उसके जो भाई थे और उसकी बहन थी उन सबको बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था कि उड़ना कैसे है, कैसे आपको डाइव लेनी है. डाइव का मतलब होना है कि कैसे डुबकी मारनी है. स्किम ऑन द वेव मतलब कि आपको फ्लोट कैसे करना है वेव पे. एक्चुअली सीगल जो होते हैं वो वेव पे
मतलब दे हैव अ टेक्निक वेयर इन वो बस उस पे फ्लोट करते हैं, किस तरीके से करते हैं वही उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और सिस्टर को सिखा रहे थे। और ये वाला सीगल जो था छोटा वाला यहाँ पे जो कॉर्नर में लेज पे बैठा हुआ है, वो हिम्मत ही नहीं कर रहा था कि वो जाके ये सब कुछ सीखे। तो उसके ब्रदर्स और सिस्टर ने सब कुछ परफेक्ट कर ली थी ये आर्ट डाइव करने की और स्किम करने की वेव पे। और उसका जो बड़ा भाई था उसने एक फर्स्ट हेरिंग एंड और स्टैंडिंग ऑन द रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। मतलब उसके भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक हंट की, एक हेरिंग एक तरीके की फिश होती है, और डिवावा मतलब आप बहुत अच्छे से जब खाते हैं किसी चीज को हरीली और हंग्रीली, तो उसने अपने भाई को ये सब कुछ करते हुए देखा कि ही इज बीन एबल टू हंट। उसने एक फिश ले ली है और उसके पेरेंट्स किस तरीके से उसको एकदम कैकल मतलब प्राउडली कैकल कर रहे हैं कि उसकी तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं उसके लिए। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Basically उसके पेरेंट्स अब उसको उसके डरपोक पने के लिए उसको डांट रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और उसके ब्रदर्स और सिस्टर जिस तरीके से सब कुछ सीख चुके थे, ये सबसे पीछे था, कुछ भी सीख नहीं पा रहा था। एंड द फैमिली वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद हिम, उन्हें लग रहा था ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सब उसको डांट रहे थे और उसकी कावर्डिस का मजाक उड़ा रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना, छोटे से बढ़ना। तो अब सन उगने लग गया था, मतलब इट वॉज अबाउट टू राइज, बहुत ऊपर ऊपर पहुंच रहा था और गर्मी हो रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज एज दैट फेस द साउथ। तो अब जहां जिस लेज पे बैठा हुआ था सीगल, वो पूरी की पूरी गर्म हो चुकी थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। तो वो इतना कमजोर वीक महसूस कर रहा था क्योंकि एक रात पहले से, एक दिन पहले से उसने कुछ भी खाया नहीं था। He stepped slowly to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ऑन योर राइट हैंड साइड टॉप, किस तरीके से बेसिकली सीगल्स सोते हैं कि एक उनका जो लेग है वो नीचे है और एक वो अपना कवर करके अपने फेदर से स्लीप करने की कोशिश करते हैं। सो ही ट्राई टू डू इट बिकॉज ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी ही वॉन्टेड, वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है ऐसा दिखाए सबको, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, नोबडी वाज नोटिसिंग हिम। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था बिकॉज दे वर सो डिसअपॉइंटेड। अब उन्होंने उसे कुछ कहना या बोलना ही बंद कर दिया था। He saw his two brothers and sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो उसके ब्रदर और सिस्टर तो सो रहे थे। His father was preening his feather of his white back. और उसके जो फादर थे, प्रीनिंग का मतलब होता है आप मेंटेन करते हैं अपने फेदर्स को। सो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज फेदर, क्योंकि उन्हीं को यूज करके उन्हें उड़ना होता है। सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फेदर्स, अपने पंखों का ध्यान रखना पड़ता है। Only his mother was looking at him, so only the mother was noticing him because mother did care about him and she knew that he'd not eaten anything since last night. तो उनको obviously उसकी mother को उसका ध्यान था और चिंता भी थी। She was standing on a little high hump on the plateau with her white breast thrust forward. Now and again she tore at a big piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो मतलब उसकी मॉम बार बार जो थी एक जो फिश थी उनके पास, उसके कुछ कुछ पीसेस ले रही थी और स्क्रैप ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक। रॉक पे जो आप स्क्रैप करते हैं, घिसते अपनी बीक को, इसलिए ताकि वो शार्प रहे। तो अगर आपको खानी है फिश तो उसके लिए आपको शार्पनेस चाहिए अपनी बीक की, अपनी जो जिस अपना माउथ जो होता है उनका बीक जो होती है। तो वो देख रहा था एंड ही वाज फीलिंग सो ही वाज सो हंग्री कि वो बस अपनी मदर को खाते हुए और ये एक्शन करते हुए देखे जा रहा था और उसे भी ये सेम करना था। सो द साइड ऑफ फूड मैडर्ड हिम, तो वो पागल हो गया एकदम खाने के साइड को देख के, क्योंकि ही वाज सो हंग्री। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो उसे लग रहा था कि मतलब वो भी वही करना चाहता है जो उसकी मदर करी थी। ही वॉज मिसिंग द इंटायर प्रोसेस, जहाँ पे वो खाता था फिर अपनी पूरी बीक को स्क्रैप करता था उसे टू शार्पन इट, ही वॉज मिसिंग इट ऑल। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. तो अब वो गा 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 मतलब that's his way of conveying to his mother to give him food. लेकिन वो उसकी मॉम बहुत गुस्से में थी and she had decided that she's not going to offer food to him because everybody was after his life कि भैया उड़ना सीख लो, because if you will not learn how to fly then how are you going to manage food for yourself later on. गोकोला, शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली। डेरिसिवली मीन्स गुस्से में, क्योंकि उसकी मॉम को लग रहा था हम कब से बोले जा रहे हैं, ही इज नॉट लर्निंग, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब बैक करते हो ना बड़े दुखी तरीके से। तो वो उसको मॉम को बुलाता रहा कि प्लीज मेरे को खाना दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम।
His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब वो थोड़ी देर के बाद खुश हो गया क्योंकि उसने अपनी देखा मदर को एक थोड़ा सा वो पीस लेकर आई थी फिश का उसकी तरफ. He leaned out eagerly, मतलब वो एकदम झुका बहुत जल्दी से, tapping the rock with his feet. एक्साइटमेंट में रॉक को अपने फीट से थोड़ा सा टैप किया, trying to get nearer to her as she flew across. और अपनी मदर के पास जाने लगे, जैसे वो करीब करीब आते जा रही थी उड़ते उड़ते, वैसे वो और थोड़ा पास जाने लगे अपनी मदर के. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. लेकिन जैसे वो थोड़ा करीब आई, उसके एकदम ऑपोजिट खड़ी थी उसकी मॉम, रुक गई वहीं पे. क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि वो ऐसी इतनी आसानी से उसे फूड ना मिले. उसने एकदम मोशनलेस अपने विंग्स को किया और वहां पे आके उसके ऑपोजिट खड़ी हो गई. ही वेटेड अ मोमेंट इज सरप्राइज. उसे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि मॉम मुझे खाना देने के लिए आई थी, आज सडनली क्या हो गया कि वाई शुड नॉट कमिंग फर्दर, वो आ क्यों नहीं रही और पास मुझे खाना देने के लिए. Wondering why she did not come nearer, and that maddened by hunger, he dived at the fish. उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि वो जल्दी से गया और वो डाइव किया, मतलब फिश की तरफ उसने डाइव किया, अपनी चोंच को फैलाया. विद अ लाउड स्क्रीम he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तो उसने देखा कि वो एक्चुअली जब उसने डाइव किया फिश की तरफ जहां उसकी मॉम थी उसके थोड़े से पास, वो सी पे आ गया और वो उड़ना शुरू किया उसने. सो बहुत ही ज्यादा उसने पहले बहुत जोर की आवाज निकाली, लाउड स्क्रीम. He fell outwards and downwards into the space. तो मतलब outward और downwards मतलब ऊपर नीचे होना space में, हवा में. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. उसे बहुत डर लगा जब first time ये हुआ, जब उसने देखा कि वो एकदम हवा में आ चुका है and there is no floor on under his feet. उसका हार्ट एकदम still हो गया, मतलब उसको इतना घबराहट हुई, उसको बहुत डर लग गया और ऐसा लगा कि उसका हार्ट थम गया है. He could hear nothing, और उसे कुछ सुनाई नहीं दिया घबराहट में. But it only lasted a minute. But वो बस एक मिनट के लिए ही था जितना उसे डर लग रहा था. होता है ना, आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको डर लगता है, but once you are used to it, you become really good at it. So this is what is happening with him. So he tried once, he got scared, and now he probably is going to master this technique. The next moment he felt his wings spread outwards. So अब उसके wings जो हैं बिल्कुल फैले हुए हैं, क्योंकि अब उसने सीख लिया है कि उसे fly करना है और कैसे करना है. The wind rushed against his breast feathers and then under his stomach and against his wing. ये पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से वो अपने विंग मूव कर रहा था, किस तरीके से एयर उसके पंखों के बीच में आ रही थी, उसके स्टमक को टच कर रही थी और वो पूरा का पूरा फ्लाई कर रहा था. He could fly the tips of his wings cutting through the air. He has not falling headlong now. अब वो गिर नहीं रहा है, अपने सर के बल नहीं गिर रहा है, अब he is in the air, he is actually flying. He was soaring gradually downwards and outward. Soaring means आप जब उड़ते हो एकदम फ्लाइट लेते हो तो वो downwards और outwards मतलब कि वो नीचे आ रहा था, ऊपर आ रहा था, तो वो आप एक्सपीरियंस कर रहा था फ्लाइंग को अपनी. He was no longer afraid. अब उसे डर नहीं था. He just felt a little dizzy. बस उसको थोड़ा सा सर में ऐसा लगा कि उसे चक्कर आ रहे हैं, because उसको वो नया एक्सपीरियंस था इसीलिए. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga. Gaucola. So now अब वो फ्लैप करने लग गया, मतलब फड़फड़ाने लगा अपने विंग्स को और एकदम ऊपर चला गया और वहां पे जाके उसने ये सॉन्ग गाया, अपनी आवाज निकाली. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसकी मॉम एकदम उसके पास आके उसकी तरफ उड़ी वो और एकदम लाउड नॉइस में उसके विंग फड़फड़ाए. He answered her with another scream. तो वो खुशी से जो एकदम होता है ना, आप किसी भी चीज के लिए चिल्लाते हैं, तो अब वो हुआ क्योंकि फाइनली उसने उड़ना सीख लिया था. Then his father flew over him screaming. तो उसके फादर भी एक्साइटमेंट में उसकी तरफ स्क्रीम करते हुए गए. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. So ये सारे के सारे फ्लाइंग के मोशन है कि किस तरीके से आप नीचे जाते हो, आप बैठते हो कहीं पे, किस तरीके से आप डाइव करते हो एकदम नीचे समंदर में, और किस तरीके से आप एकदम ऊपर सोर करते हो. So ये सारे के सारे एक्शन उसके ब्रदर्स और सिस्टर कर रहे थे. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब उसको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि एक ऐसा भी टाइम था कि जब वो फ्लाई नहीं कर पाता था. जैसे हमने एकदम फर्स्ट वाली स्लाइड में देखा था किस तरीके से वो इतना घबराया हुआ था, उसे लग रहा था कि वो अगर सी में उड़ने की कोशिश भी करेगा तो वो सीधा सी में घुस जाएगा, वहां मर जाएगा डूब के. बट यहाँ पे उसे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कभी था भी कि वो फ्लाई नहीं कर सकता था. इट बिकेम सो नेचुरल टू हिम, इट केम सो नेचुरली टू हिम. एंड ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड soar and curve, shrieking शॉकिंग श्रीली. तो अब वो बिल्कुल डाइव कर रहा था, मतलब नीचे जा रहा था, एकदम ऊपर जा रहा था, पूरे कर्व्स ले रहा था, अच्छे से घूम रहा था, बहुत ही तेज आवाज निकाल रहा था. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. तो वो एकदम फ्लाई कर रहा था ओशन के ऊपर और एकदम सीधा स्ट्रेट, मतलब पूरे अच्छे से वो ओशन में फ्लाई कर रहा था.
he saw a vast green sea beneath him, और नीचे वो क्या देख सकता था, एक vast green sea, पानी से भरा समंदर जो कि ग्रीन लग रहा था उसे, with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and cawed amusedly. So how he's all amused, मतलब उसे इतनी खुश हो रही है कि किस तरीके से अपनी बीक को मूव कर रहा है साइडवेज, और उन्हें पूरा एक्सपीरियंस कर रहा है, पूरे अपने एक्सपीरियंस मतलब फ्लाइट के एक्सपीरियंस को. हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. तो उससे आगे जो ग्रीन फ्लोरिंग मतलब आपको जो सी है समंदर पे, उसमें उन्होंने लैंड कर लिया था, मतलब वो उस पे समंदर पे बैठे हुए थे, डूबे नहीं थे. तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि वो फ्लोट करते हैं उस पे समंदर के पानी पे, लेकिन वो डूबते नहीं है. They were beckoning to him, beckoning मतलब उसको बुलाना, calling shrilly, और जोर से आवाज लगा रहे थे उसको कि आने के लिए उनके पास. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. तो उसने जब कोशिश की पहले अपना पैर रखने की समंदर पे, सरफेस पे, तो क्या हुआ, उसका पैर डूब गया, sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो उसे इतना डर लगा, उसने जोर से आवाज निकाली और फिर से वो फ्लाई करना शुरू कर दिया. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. तो उससे, लेकिन जैसे पहले हमें बताया था कि वो उसने कुछ खाना नहीं खाया, तो अब वो प्रैक्टिस करके इतना थक चुका था उड़ के कि अब उसने कोशिश की दोबारा उड़ने की. जब उसने सी पे अपना पैर रखा और वो डूबने लगा, उसने कोशिश की उड़ने की, तो वो उड़ ही नहीं पाया क्योंकि वो इतना थक चुका था. His feet sank into green sea and his belly touched it and he sank no further. तो उसने क्या किया, अपने फीट को फिर से रखा वहीं पे ग्रीन सी के फ्लोर पे, उसने देख और अपनी बेली को टच किया पानी से, तो उसने देखा कि वो तैर रहा था, अब वो नीचे मतलब डूब नहीं रहा था समंदर में. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. तो जैसे उन्होंने देखा कि वो फ्लोट करना शुरू किया है, तो अब ये पूरी की पूरी इसकी जो अचीवमेंट थी कि उसने उड़ना शुरू कर दिया, उसने यहाँ पे डाइव करना शुरू कर दिया, सॉ करना शुरू कर दिया, और फाइनली ही वाज फ्लोटिंग ऑन द ग्रीन सी. तो ये देख के उसके पेरेंट्स इतने खुशी हुए कि उसको प्रेज करने लगे, एकदम शोर से आवाजें बचाने लग गए कि हाँ ही इज लर्नड इट फाइनली, और उसको वो ऑफर करने लगे तारीफों के साथ, क्या, डॉग फिश. He had made his first flight. So this is how he had made his first flight. So basically the chapter is all about how it's never easy for us to start anything in the beginning, but once you know work on it, यू आर रियली एट इट, तो आप एकदम मास्टर कर सकते हैं उस टेक्निक को. जिस तरीके से सीगल ने किया कि वो पहले इतना डरपोक था, उसे लग रहा था वो कभी उड़ नहीं पाएगा, कभी भी वो डाइव मतलब कभी वो फ्लोट नहीं कर पाएगा सी की सरफेस पे, लेकिन ही himself proved him, he proved himself wrong only. उसने अच्छे से फ्लाइट करना भी सीख लिया और उसने फ्लोट करना भी सीख लिया. So similarly, if we want to do something or achieve something in life, if we put our heart into it, we certainly can. I hope आपको चैप्टर समझ आया हो, and if you like the video then kindly like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Much love. Thanks for watching.